شادی کے 10 سال بعد جب رقیہ ماں نہ بن سکی تو اس نے اپنے شوہر کی دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ خود اپنی سوتن کو بیاہ کر لائی۔ دوسرے ماہ ہی پتہ چلا کہ سوتن ماں بننے والی ہے۔ 9 ماہ مکمل ہوئے، رقیہ نے بچہ سوتن کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ رقیہ کا شوہر اسے روکتا رہ گیا مگر رقیہ نے سوتن کا سامان اکٹھا کیا اور اسے دوستو یہ سچی کہانی جو ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں، یہ دکھی بہن کی زندگی کی صبر آزما دن رات کی کہانی ہے۔ اس کہانی کا آغاز ہوا تھا رقیہ کی زندگی سے۔ رقیہ امیر ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، بڑی عیش و عشرت میں زندگی گزار رہی تھی۔ اکلوتی بیٹی تھی، ماں باپ کے لاڈ پیار نے کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھا رکھا تھا۔ ضدی اور سرسی طبیعت کی مالک تھی۔ رقیہ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ماں باپ اب اس کے خود سر اور ضدی طبیعت کی وجہ سے پریشان تھے۔ بے شک گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی، ماں باپ کی تمام دولت رقیہ کے نام ہی تھی، مگر اس کے باوجود لڑکی ذات کا بیاہ کر دوسرے گھر جانا ان تمام معاملات میں نہایت عقل مندی اور دانشمندی درکار ہوتی ہے۔ مگر رقیہ کے ماں باپ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کچھ عجیب سی طبیعت کی مالک ہے، لہٰذا وہ اپنی جوان بیٹی کی طرف دیکھ کر یہ بات سوچتے ہوئے خوفزدہ تھے کہ اگر ہماری بیٹی بیاہ کر کسی گھر میں جائے گی تو کیا وہاں گزارا کر پائے گی۔ بہت سوچ و بچار کے بعد رقیہ کے والد نے اس بات کا ایک حل نکالا۔ انہوں نے رقیہ کے لیے رشتہ تلاش کرنا ہی چھوڑ دیا کیونکہ ان کی نظریں ایک ایسے لڑکے پر جا ٹکی جو ان کے اپنے خاندان کا تھا۔ رقیہ کے والد کی ایک ہی بہن تھی جن کا نام صفیہ تھا۔ صفیہ ایک بیوہ خاتون تھی اور اپنے بیٹے کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ صفیہ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حسنات تھا۔ اس بیوہ بہن کی کفالت بھی خود رقیہ کے والد ہی کر رہے تھے۔ آخرکار بہت سوچ و بچار کے بعد رقیہ کے والد کے ذہن میں یہ ترکیب آئی کہ کیوں نہ رقیہ کی شادی حسنات سے کر دی جائے، اس طرح ہمیں رقیہ کو بیاہ کر رخصت بھی نہیں کرنا پڑے گا اور حسنات ہمارے ہی گھر آ جائے گا۔ بیوہ بہن کی کفالت تو پہلے ہی میں ہی کر رہا ہوں تو کیوں نہ ان دونوں کو اپنے گھر میں ہی بلا لوں۔ جیسے ہی رقیہ کے والد نے اپنی بیوی کے ساتھ اس معاملے پر بات کی تو وہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ وہ کہنے لگی ایسا ہو جائے گا تو بہترین کام ہو جائے گا کیونکہ ہماری بیٹی کسی دوسرے گھر جا کر کسی دوسرے کے نخرے برداشت کرنے والی نہیں ہے۔ کوئی ایسا داماد ہونا چاہیے جو خود ہماری بیٹی کے نخرے برداشت کرے۔ اور رقیہ کی ماں نے جب اس بات پر اتفاق ظاہر کیا تو چند ہی دن بعد رقیہ کے والد اپنی بہن سے اس سلسلے میں بات کی اور صفیہ تو یہ بات سن کر جیسے کھل اٹھی۔ اس کے تو پہلے بھی گھر کی کفالت اس کا بھائی ہی کر رہا تھا، اب وہ اسے کیا چاہیے تھا، بھائی کے محل نما مکان میں شفٹ ہو جاتی، بیٹا بھائی کا داماد بن جاتا تو بھائی کی تمام دولت جائیداد کی اکلوتی وارث اس کی بیٹی تھی۔ اس رشتے پر سوچنے سمجھنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، لہٰذا صفیہ نے فوراً ہاں کر دی۔ رقیہ کے والد خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ آئے اور اپنی بیوی کو یہ خوشخبری سنائی کہ رقیہ کا رشتہ حسنات کے ساتھ طے کر چکا ہوں۔ مگر دوسری طرف جب صفیہ نے رات کو اپنے بیٹے کی واپسی پر اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ آج تمہارے ماموں تشریف لائے تھے، وہ تمہارا اور رقیہ کا رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں، میں نے ہاں کر دی۔ یہ بات سن کر حسنات کچھ دیر کے لیے خاموش رہ گیا کیونکہ وہ اپنے ماموں کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا اور ان کی چڑچڑی اور خودسر بیٹی کو بھی وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ بے شک وہ لوگ امیر تھے، پیسے کی ریل پیل تھی، مگر اس کے باوجود حسنات وہاں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اور وہ یہ بھی بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی ماں کبھی بھی اس کے ماموں کو انکار نہیں کرے گی۔ اس کے باوجود حسنات نے دبے لفظوں میں اپنی ماں کے سامنے کہا، اماں شادی کے بعد مجھے اس گھر میں رہنا پڑے گا اور آپ جانتی ہیں ماموں اور اس کی بیٹی کس مزاج کے ہیں، وہ لوگ اپنا حکم چلاتے ہیں، ساری عمر مجھے وہاں دب کر رہنا پڑے گا۔ تو حسنات کی ماں کے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، اپنے ماموں کے احسانات کو یاد کرو، تمہارے باپ کی وفات کے بعد وہی ہماری کفالت کرتے آ رہے ہیں اور پاگل مت بنو۔ لوگ ساری عمر کاروبار جمانے کے لیے اچھی نوکریاں تلاش کرنے کے لیے دھکے کھاتے ہیں اور تمہیں سب کچھ بنا بنایا مل رہا ہے، گھر آئی اس رحمت کو دھکا دو گے، پکارو گے، کون تمہیں عقل مند کہے گا۔ لہٰذا ماں کے سمجھانے پر حسنات خاموش ہو گیا اور یوں حسنات اور رقیہ کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد حسنات اور اس کے ماں بھی رقیہ کے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ پہلے حسنات کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی کہ وہ ہر وقت خاموش رہتا۔ شادی کے بعد رقیہ کے والد نے کاروبار کی ذمہ داری آہستہ آہستہ حسنات کے سپرد کرنی شروع کر دی اور دھیرے دھیرے کاروبار کی سمجھ بوجھ کے بارے میں حسنات کو بتاتے رہتے، سمجھا رہے تھے۔ گزرتے وقت کے
साथ साथ कारोबार की ऊंच नीच इसकी बारीकियां हसनात समझता जा रहा था और गुजरते वक्त के साथ साथ के अपने मिजाज में भी तब्दीली आ रही थी। पहले पहल वो अपनी बीवी रुकैया और मामू से बहुत दब कर रहता और इसे हर वक्त ये एहसास सताए रखता है कि वो घर दामाद है और वो अपने मामू का खा रहा है या वो अपनी बीवी से कमतर है। मगर वक्त के साथ साथ जब वो इन तमाम आसाइशों का आदी हो गया तो इसने तमाम सोचों को पश्चे फेंका और जिंदगी एंजॉय करने का सोचा। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। हसनात की शादी को 2 साल के बाद भी सफिया को कैंसर जैसे मुसीबत ने आ लिया और सफिया अल्लाह को प्यारी हो गई। शादी के बाद भी रुकैया की जिंदगी में कोई खास तब्दीली नहीं आई थी। इसके शब रोज अब भी वैसे ही थे जैसे शादी के पहले थे और यही तो इसके वालिदैन चाहते थे। वो जानते थे कि अगर इनकी बेटी पर कोई रोक टोक की गई तो वो जिद्दीपन का मुजाहरा करेगी। अब रुकैया के वालिदैन मुतमईन थे। आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों खुद ज़ईफ होते जा रहे थे। घर का मुकम्मल होल्ड इनकी बेटी रुकैया ने संभाल लिया और कारोबार का होल्ड हसनात के पास था। गो के इस पर भी रुकैया की मुकम्मल नजर थी। वो हर 10-15 दिन बाद हसनात के साथ बैठकर तमाम हिसाब किताब खुद देखा करती और इसी तरह धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था। देखते ही देखते शादी को 5 साल गुजर गए और इन 5 सालों में खुद रुकैया के वालिदैन भी एक एक करके दुनिया से रुखसत हो गए। हसनात को अब औलाद की कमी महसूस होने लगी थी। गाए बगाए दबे अल्फाज में वो रुकैया के सामने भी इस ख्वाहिश का इजहार करता। रुकैया जाहिर नहीं करती थी मगर अंदर ही अंदर वो परेशान भी थी। मुख्तलिफ डॉक्टर्स को चेकअप करवाती और फिर इसी तरह देखते ही देखते शादी को 10 साल मुकम्मल हो गया और इन 10 सालों में शहर के अलावा बैरून मुल्क भी वो डॉक्टर को चेकअप करवा चुके थे। जबकि डॉक्टर का कहना था कि रुकैया के अंदर कमी है, इसमें मां बनने की सलाहियत नहीं। इस खबर ने जैसे रुकैया को अंदर से तोड़कर रख दिया था। अब वो अक्सर हसनात के उदास चेहरे पर नजर डालती और अपने सोने आंगन को देखती तो शिद्दत से कमी महसूस होने लगती। इसने इससे इस मसले के बारे में सोचना शुरू कर दिया। आखिरकार इसका कोई तो हल होगा। बहुत सोचो विचार के बाद रुकैया ने इसका ये हल निकाला कि वो हसनात की दूसरी शादी करे। इसके लिए इसने खानदान भर में नजर दौड़ानी शुरू कर दी। तभी इसकी नजर कुलसूम पर पड़ी। कुलसूम रुकैया के दूर परे के एक रिश्तेदार की खाला की बेटी थी। इसके अपने वालिदैन का इंतकाल हो चुका था, लिहाजा वो मामू मुमानी के जेरे साया थी। 30-32 साल की उम्र हो चुकी थी। मामू मुमानी खुद भी गुर्बत का शिकार थे। इनकी अपनी औलाद भी काफी थी, लिहाजा कुलसूम की तरफ तो कोई देखता भी नहीं था। जैसे ही रुकैया ने कुलसूम के रिश्ते की बात मामू मुमानी तो जी जान से खुश हो गए थे और रुकैया हसनात और चंद दोस्त अहबाब के साथ गई और कुलसूम का निकाह करवाकर इसे अपने घर ले आई। ये सोचकर रुकैया कुलसूम को लाई के बिल्कुल वैसे ही हो रहा था। कुलसूम गरीब घर की थी, यतीम और मिस्कीन थी और रुकैया से बहुत ही दब कर रहती थी। शादी के शुरू के दिन तो सब कुछ ठीक ठाक था और रुकैया कुलसूम पर अपनी खूब हिकमत चलाती। इसने पहले दिन ही कुलसूम को दबा कर रखा। जैसे ही शादी को 1 माह हुआ तो रुकैया को ये खबर मिली कि कुलसूम मां बनने वाली है। इसके बाद तो जैसे रुकैया का कुलसूम के साथ बहुत सख्त हो गया। हालांकि वो इसी काम के लिए कुलसूम को ब्याह कर लाई थी, मगर न जाने क्यों वो कुलसूम से हसद और जलन का शिकार होने लगी। हसनात देखकर इसके घर में कुलसूम की हैसियत सौतन या दूसरी बीवी से ज्यादा एक मुलाजमा की थी। कुलसूम सारा दिन घर के काम काज निपटाती, किचन में काम करती। ये जानकर हसनात हैरान रह गया कि रुकैया ने घर की 2 मुलाजमिन हटा दी है। इसका कहना था कि कुलसूम सारा दिन फारिग ही तो होती है, अब काम कुलसूम कर लेगी। हसनात कुछ भी न कह सका। वो खामोश तमाशाई बना रहा। धीरे धीरे वक्त यूं ही गुजरता रहा। 9 माह मुकम्मल हुए तो कुलसूम ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। मगर जैसे ही कुलसूम ने बेटे को जन्म दिया, रुकैया ने बच्चा अपनी गोद में ले लिया और कुलसूम देखती रह गई। रुकैया ने जबकि बच्चे के लिए खुश दूध मंगवाया। वो बच्चे को फीडर से दूध देने लगी और बच्चे को अपने साथ सुलाने लगी। कुलसूम दिन रात आंसू बहाती और इसकी तरफ बड़ी उम्मीद से देखती कि वो इसके बच्चे को गोद लेने देगी, सीने से लगाने देगी। कुलसूम ने बड़ी बार इल्तिजा की कि रुकैया से कहा कि वो बच्चे को कुलसूम के हवाले कर दे और वो इसे दूध पिलाकर वापस कर देगी, मगर रुकैया कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। कुलसूम ने दिल पर पत्थर रख लिया। आहिस्ता आहिस्ता वो इस बात पर राजी हो गई कि चलो इसका बच्चा इसके आंखों के सामने तो है, वो अपने बेटे को देख सकती है। अब तो सारा दिन घर के काम काज करती और जैसे ही रुकैया कहीं आगे पीछे होती तो एक नजर अपने बच्चे को देखकर सीना ठंडा कर लिया करती। मगर रुकैया बहुत ही सख्त रवैया रखती थी। वो कुलसूम को बच्चे के नजदीक भटकने भी नहीं देती थी। हसनात ये सब कुछ देख रहा था मगर वो खामोश था, क्योंकि इसके घर में इसकी भी नहीं चलती थी। पहले जब कुलसूम शादी के बाद इस घर में आई थी तो रुकैया ने इसे अपने कमरे
कमरे के साथ वाला कमरा दिया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रुकैया का सामान इस कमरे से निकालना शुरू कर दिया और इस घर के एक पुराने बोसीदा स्टोर रूम नुमा कमरे में शिफ्ट कर दिया, ये कह कर के ये कमरा वो नए सिरे से रेनोवेट करवाएगी और यहाँ वो अपने बेटे का सामान रखेगी। रुकैया का ये रवैया देखकर कुलसुम का दिल तो बहुत टूटा, लेकिन ये सोचकर इसने अपने दिल को तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, जो कमरा वो खाली कर रही हूँ इसमें भी इसका बेटा ही तो होगा। खैर वक्त यूं ही धीरे धीरे गुजरता रहा। आहिस्ता आहिस्ता गुजरते वक्त के साथ साथ कुलसुम की हैसियत इस घर में एक मुलाजमा से बदतर हो गई। वो सारे घर का काम करती, दिन भर कामों में जुड़ी रहती, दोनों मियाँ बीवी के आने से पहले मेज पर खाना लगाती, मगर खुद इसे पूछने वाला कोई नहीं था। सब खाने के बाद किचन साफ करती, बर्तन साफ करती और फिर किचन के फर्श पे बैठकर खाना खाती। हत्ता कि अब तो रुकैया ने इससे जरूरत की चीजों के बारे में भी पूछना छोड़ दिया था। कभी इसने कोई नया कपड़ा नहीं पहना था और रुकैया साल 2 साल बाद जब याद आता तो इसे अपने पुराने कपड़े दे दिया करती थी। हत्ता कि इसका बेटा जो बड़ा हो रहा था वो भी कुलसुम को घर में मुलाजमा ही समझता था, क्योंकि इसकी माँ का सुलूक ही ऐसा था। खुद रुकैया अपने बेटे जवाद के सामने कुलसुम को हमेशा किसी मुलाजमा की तरह ट्रीट करती थी और बच्चा खुद भी देख रहा था कि सारे घर के काम कुलसुम करती है। मेज पर खाना कुलसुम लगाती है, बर्तन कुलसुम धोती है, कपड़े कुलसुम धोती है और आहिस्ता आहिस्ता इसने कुलसुम को बुआ कहना शुरू कर दिया। ये सारे मंजर देखकर अक्सर कुलसुम की आंखों में आंसू आ जाते। गुजरते वक्त के साथ साथ इसके अपने जिस्म में भी ताकत और हिम्मत कम हो रही थी और ज्यादा दुख और तकलीफ तो इस बात का था कि अपने घर में होते हुए इसका घर आधे हिस्सेदार होते हुए भी इसके साथ मुलाजमों जैसा सलूक हो रहा है और वो और इसका बेटा जिसको इसने जना है वो इससे कुलसुम बुआ कहता है। ये तो कुलसुम को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाटे जा रहा था, मगर कहते हैं ना कि जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो मिट जाता है। रुकैया तो शायद इस बात को भूल चुकी थी कि अल्लाह की जात भी देख रही है। वक्त गुजरता गया और अब रुकैया का बेटा जवाद 10वीं जमात का तालिब इल्म था। जब अचानक एक दिन तबीयत खराबी पर रुकैया को अस्पताल ले जाया गया तो मालूम हुआ कि इससे स्टेज 4 का कैंसर है। हसनात ने पूरी जी जान लगाकर रुकैया का इलाज के लिए भागदौड़ करना शुरू कर दी। वो इसे बैरूने मुल्क तक ले गया, मगर कैंसर आखिरी हद तक फैल चुका था। अब इसका इलाज नामुमकिन था और फिर 6 माह के अंदर अंदर रुकैया अल्लाह को प्यारी हो गई। माँ की अचानक वफात ने जवाद को जैसे अंदर से तोड़कर रख दिया। वो भी अपनी माँ का लाडला बेटा था, इस दुख को सहना ही पा रहा था। दिन रात रोता बिलखता माँ के कमरे में इसकी चीजों को देखता और आंसू बहाता रहता। इस मुश्किल वक्त में भी कुलसुम ने जवाद का बहुत साथ दिया। वो दिन रात इसके खाने पीने का ख्याल रखती, इसे अपने हाथों से निवाले खिलाती, हर वक्त साई की तरह इसके आगे पीछे रहती। अक्सर जब कभी जवाद को रोते हुए देखती तो इसके पास बैठकर प्यार से इसका सर सहलाती और इसे समझाने लगती कि देखो आपकी मम्मा ऊपर जन्नत से आपको देख रही हैं और यूं आपको रोते हुए देखेंगी तो कितना परेशान हो जाएंगी। और वो यही चाहती थी न कि आप खुशबाश रहो, पेट भरकर खाना खाओ, अच्छी नींद लो। और अब जब वो देखेगी तो इसका प्यारा लाडला बेटा यूं दिन रात खाना छोड़कर बैठा है तो और दिन रात आंसू बहाता है तो माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। कुलसुम बुआ की ये बात सुनकर जवाद ने रोना बंद कर दिया। इसने अपने हाथों की पुष्ट से अपनी आंखों को आंसू साफ किया और कहने लगा, आप ठीक कह रही हो बुआ, मम्मा को तकलीफ होगी जब वो मुझे यूं रोता हुआ देखेंगी। अब मैं नहीं रहूंगा। कुलसुम ने इसे समझाया कि तुम्हें जब भी अपनी माँ की याद आए तो इनके लिए फातिहा ख्वानी करो, अल्लाह ताला से इस दिल में दुआ किया करो कि वो इन्हें जन्नत में जगह दे, जन्नत में आला मकाम दे। जब तुम खुश रहोगे तो अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से जियोगे और अपनी माँ के लिए जन्नत की दुआ करोगे तो वो बहुत खुश होगी। और फिर वाकई जवाद ने ऐसा ही करना शुरू किया और वो खुश रहने लगा। इसने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया था। रुकैया की वफात को 2 माह बीत चुके थे। धीरे धीरे न चाहते हुए भी सब अपनी जिंदगी के रूटीन की तरफ वापस आ रहे थे। एक रोज दोपहर के वक्त जब जवाद अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था तो इसकी आंख लग गई। शायद 1 घंटे तक वो सोता रहा। जब वो उठकर कमरे से बाहर निकला तो पानी के लिए किचन का रुख किया तो ये देखकर ठटक गया कि और 2 कदम पीछे ही रुक गया। इसके वालिद किचन में कुलसुम बुआ के पास खड़े थे और इनका हाथ थाम रखे थे। जवाद के वालिद हसनात कुलसुम बुआ से कह रहे थे कि कुलसुम मुझे माफ कर दो,
तमाम उम्र देखता रहा तुम्हारे साथ जो सुलूक हो रहा था, मगर तुम इतने सालों में रुकैया के मिजाज से तो अच्छी तरह वाकिफ हो गई थी और मेरी सिचुएशन भी समझ सकती हो। तुम दौलत, जायदाद, ये घर बार, ये कारोबार सब रुकैया के वालिद का था, मेरा कुछ भी नहीं था। तो तुम सोच सकती हो कि इसके आगे बोलने की कितनी हैसियत रखता हूँ, या वो मेरी बात को कितना सुनती होगी और कितना मानती होगी। मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। जवाद किचन के दरवाजे पर खड़ा हैरत से ये मंजर देख रहा था। इसके वालिद ये कह रहे थे कि तभी अचानक कुलसुम की नज़र जवाद पर पड़ी। फौरन ही हसनात ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगा, आओ बेटा अंदर आ जाओ। मैं सोच ही रहा था कि तुमसे भी इस बारे में बात करूं और तुम्हें भी हकीकत से आगाह करूं। जवाद ने हैरत से बाप की तरफ देखते हुए कहा, कैसी हकीकत बाबा? तब हसनात ने बेटे को किचन में पड़ी कुर्सी खींचकर इस पर बिठाया और खुद सामने दूसरी कुर्सी पर बजमान हो गया। फिर इसने धीरे धीरे नर्म अल्फाज शुरू से लेकर आखिर तक तमाम दास्तां अपने बेटे के सामने दोहराई। इसे बताया कि इसकी माँ वो कुलसुम है जिसे वो कुलसुम बुआ कहता है। रुकैया ने इसे जन्म नहीं दिया, हाँ इसको पाला रुकैया ने था, इसकी परवरिश रुकैया ने की थी, इसकी तरबियत रुकैया ने की थी, मगर इसकी माँ इसे पैदा करने वाली औरत कुलसुम थी। ये सारी हकीकत जानने के बाद जवाद भी हैरान परेशान था। वो हैरत से कभी अपने बाप की तरफ देखता, कभी कुलसुम के चेहरे पर नजर दौड़ाता। तब अचानक वो अपनी जगह से उठा और आगे बढ़कर कुलसुम को गले लगा लिया। बेतहाशा आंसू बहा रहा था और कहने लगा, मैं भी तो कहूँ कि कुलसुम बुआ कितनी अच्छी हैं, ये तो माँ का दूसरा रूप है। और देखिए बाबा तो मेरी माँ से निकली ही, और अल्लाह देखे मुझ पर कितना मेहरबान है। मेरी एक माँ से ली और दूसरी माँ मुझे दे दी। बेटे के मुंह से ये मुस्बित बात सुनकर दोनों मियाँ बीवी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। कुलसुम ने बहुत बुरा वक्त देखा था पहले अपने माँ बाप की वफात के बाद। मामू मानी के घर में इसने बहुत बुरे दिन गुजारे थे, जानवरों की तरह दिन रात काम किया और बदले में सिर्फ 2 वक्त रोटी मिली। इसके बाद शादी होकर जब वो हसनात के घर आई तो इसने सोचा कि शायद अब इसकी जिंदगी बदल जाएगी, मगर यहाँ इसने जिंदगी का एक और भयानक रूप देखा। लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, हर रात के बाद एक सुबह जरूर नमूदार होती है, और कुलसुम की जिंदगी की सुबह अब हो चुकी थी। इसके सारे दुख दर्द खत्म हो चुके थे। जवान बेटा जो इस पर जान छिड़कता था और प्यार करने वाला शौहर जिसे इसने अब दिल से माफ कर दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि वो भी बेबस और मजबूर था। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की सबक आमूज़ कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।